Good morning, class. In previous video we are discussing about the structure of microsporangium. Now today discussing about the microsporogenesis. What is the microsporogenesis? Microsporogenesis is the process of formation of microspore, pollen grain, etc. Clear है ना? या male gametes. Also we said that the formation of male gametes is known as the microsporogenesis. As the anther developed, the cell of a sporogenous tissue undergoes the meiotic division in form of the microspore tetrads. What is the polarity of a cell of a tetrads? That is the haploid structure. Why? Because the male gametes and female gametes in nature in a haploid. जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं. फिर हम बात करते हैं एज ईच सेल ऑफ अ स्पोरोजेनस टिश्यू इज अ कैपेबल टू राइज ऑफ अ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स. स्पोरोजेनस टिश्यूज के सभी सेल्स के अंदर कैपेसिटी होती है जो माइक्रोस्पोरो टेट्राड्स का फॉर्मेशन कर सकें. ईच वन ऑफ द पोटेंशियल pollen and the microspore mother cells. The process of formation microspores from a pollen mother cells PMC through the meiosis division that is called the microsporogenesis. That is the definition of a microsporogenesis. सिंपल सी 3 लाइन की definition है और बहुत बार पूछी जाती है. What is the microsporogenesis? What is the special key points of microsporogenesis? First is a PMC pollen mother cell and second is a meiosis division. ठीक है, meiosis division and pollen mother cells is the key point of microsporogenesis. इसके बिना microsporogenesis की definition complete नहीं होगी. The microspores as they are formed to arrange in the cluster of 4 cells. जो microspores होंगे ये cluster of 4 cells के फॉर्म पर formed होंगे. The microspore tetrads as the anther mature and dehydrated. जैसे ही माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो एंथर मैच्योर हो जाएंगे एंड डिहाइड्रेटेड होंगे. डिहाइड्रेटेड मीन्स जो सेल्स है वो ड्राई होने लगते हैं. एंथर जो होंगे वो ड्राई होना स्टार्ट कर देंगे. द माइक्रोस्पोर डिसोशिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन. माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे? डिसोशिएट होंगे एंड फॉर्म करेंगे पॉलन ग्रेन का. Inside the microsporangium, several thousand of the microspore or pollen grain are formed. Microspore कह लीजिए या pollen grain, that is the same terms. Grain are formed to release with the dehiscence of anther. What is the meaning of dehiscence? That is meaning of the bursting. जैसे कि किसी चीज का बस्ट होना, फट जाना, इस तरह एंथर के बस्ट होने को बोलते हैं डेहिशन ऑफ अ एंथर. क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आप ये सारी प्रोसेस को राइट डाउन करेंगे. फिर आता है पॉलन ग्रेन. द पॉलन ग्रेन आर रिप्रेजेंटेड टू अ मेल गैम्प्रोफाइट्स. पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल गैम्प्रोफाइट्स का. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द माइक्रोस्पोर्स या मेल गैम्प्रोफाइट? दैट इज द हैप्लॉइड इन नेचर. इफ यू टच and open the anther of hibiscus of any flower, another flower, you must have the depositions of yellowish powdery pollen grain from your finger. In class 12 one practicals the germination of pollen grain. इसमें हम pollen grain का germination करेंगे, pollen tube का formation करेंगे लैब में, जिसमें हम commonly hibiscus rosa sinensis लेते हैं. commonly क्या करते हैं? hibiscus rosa sinensis लेते हैं, रोज भी ले सकते हैं. ठीक है, वहां पर हम आपको दिखाएंगे पॉलन ग्रेन में. जब हम उसको बस्ट करेंगे एंथर को तो उससे से हमें क्या निकलेगा? पॉलन ग्रेन निकलेगा. एक पाउडरी स्ट्रक्चर का फॉर्म्ड होगा. स्प्रिंकल्स दिस ग्रेन टू एंड ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक आउट द ग्लास एंड ऑब्जर्व द अंडर माइक्रोस्कोप. हम इनको स्प्रिंकल कर लेते हैं और माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर. लुक एट द पिक्चर्स हियर इन द सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द pollen grain. This is the microscopic structure या microscopic picture of different shape and size of a microspores या pollen grain. Pollen grain have a 2 layer. First is the exine and second is the intine. Exine is the hard and given the shape structure of pollen grain. Clear? You will ready to imagine a variety of architecture, size, shape, color, design seen in the pollen grain from the different species. Pollen grain are generally, that is the character of the pollen grain.
Pollen grain are generally spherical, measure about the 25 to 50 micrometer in diameter. What is the general shape size of a microspore? That is the 25 to 50 micrometer. And what is the value of micrometer? That is the 10 to power minus 6. That is the 10 to power minus 6. It has to a prominent of two layer. First is a hard outer layer is called the exine. It is made of a sporopollenin. एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की. विच वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल. नोट इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिटी एंड एल्कलाइन. जो इसको क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रदान करता है या प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं कि एल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं. नो एंजाइम दैट कैन बी डिग्रेडेड ऑफ द स्पोरोपोलिन इज सो फॉर नोन. मतलब कोई भी एंजाइम्स नहीं काम करते हैं. द पॉलन ग्रेन एक्साइन इज द प्रोमिनेंट टू अपर्चर कॉल्ड द जर्म पोल. जो पॉलन ग्रेन है उसके एक्साइन पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं. स्पर्चस में छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं जर्म पोल्स. वेयर द स्पोरोजेनिस इज एब्सेंट. जहां पर क्या होता है, स्पोरोपेनिन पॉलिनिन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. पॉलन ग्रेन are well prevented to a fossil because the present of the sporopollen. pollen grain को हम क्या करते हैं, फॉसिल्स की तरह यूज कर सकते हैं, इनको स्टोर कर सकते हैं, pollen बैंक्स में सब इनको रख सकते हैं, जिसके कारण स्पीसीज के एक्सटेंट होने से बचा सकते हैं. ठीक है. The exine are exhibit to fascinating array to pattern and design. एक्साइन के कारण ही पॉलन ग्रेन में डिफरेंट पैटर्न एंड डिजाइंस पाए जाते हैं. द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन. इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर. ये क्या होती है, पतली होती है और कंटिन्यूस. बट एक्साइन इज नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर. व्हाई? बिकॉज इट हैव फाउंड द जर्म पोर्स. इसमें क्या पाया जाता है, जर्म पोर पाया जाता है. एंड थिन लेयर, इट इज अ कंटिन्यूअस. इट्स मेड ऑफ अ सेलुलोज एंड पैक्टिन. It means intine is formed by a cellulose and pectin. अब वन क्वेश्चन आपने सुना होगा, पैक्टिन. पैक्टिन से और क्या चीज़ बनती है? पैक्टिन से बनती है मिडिल लैमिला. पैक्टिन किस चीज़ से बनती है? मिडिल लैमिला बनती है. एंड मिडिल लैमिला इज पार्ट ऑफ अ सेल वॉल. मिडिल लैमिला इज अ पार्ट ऑफ अ सेल वॉल. द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. When the pollen grain is mature, consists of the two layers. First is the vegetative cells and second is the germinative cells. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve. जो vegetative cells होती हैं, pollen grain की vegetative cells क्या होती है, bigger होती है और इसमें क्या पाया जाता है, फूड को रिजर्व करती है. द लार्ज इनरेगुलर इन शेप ऑफ न्यूक्लियस. जिसमें क्या पाया जाता है, लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस पाया जाएगा. द जर्मिनेटिव या जनरेटिव सेल्स आर स्मॉलर एंड फ्लोट विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स. जनरेटिव सेल्स क्या करती हैं, स्मॉलर होती हैं और फ्लोट करती रहती हैं वेजिटेटिव सेल्स के शेप पर. इट इज अ स्पिंडल शेप विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस. और इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा. इन ओवर द 60% ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म के 60% में पॉलन ग्रेन्स आर शेडेड shaded in this two-celled stages. In the remaining species, the generative cells divided into the mitotically. Generative cells are divided into the mitotically, giving rise the two male gametes. Before pollen grain are shaded to 3-cell stage. मतलब इसका मतलब ये है कि एंजियोस्पर्म में 60% स्पीसीज हैं जिसमें जो पॉलन ग्रेन होंगे उसमें 2 सेल्स पाई जाएंगी, लेकिन रिमेन 40% स्पीसीज हैं जिनमें 3 सेल्स पाई जाएंगी. पॉलन ग्रेन के अंदर 3 सेल्स पाई जाएंगी. फर्स्ट होगी वेजिटेटिव, बल्कि जो जनरेटिव सेल्स होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी. जो जनरेटिव सेल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी. इसलिए उनको बोला जाएगा 3 सेल्ड स्टेज. क्या बोले जाएंगे, 3 सेल्ड स्टेज. Pollen grain of many species causes to a several allergic and bronchials associated in same peoples, often to leading of the chronic respiratory
डिसऑर्डर मीन्स पॉलन ग्रेन के कारण ही ह्यूमंस में बहुत सारी एलर्जिक एंड ब्रोंकियल एसोसिएटेड डिसीजेस हो जाती हैं, क्रॉनिक डिसीजेस हो जाती हैं। ये पॉलन ग्रेन एयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू एयर में मिक्स होकर के हम इनको क्या कर लेते हैं, रिस्पायरेट कर लेते हैं, मीन्स ब्रीथ कर लेते हैं, जिसके कारण हमको बहुत सारे क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसीजेस हो जाती हैं, लाइक अस्थमा, bronchitis, etc. It may be a mention that is the parthenium or a carrot grass. ये किस चीज़ के हो सकते हैं, पार्थेनियम एंड कैरेट ग्रास। एंड व्हाट इज द पार्थेनियम एंड कैरेट ग्रास? कैरेट ग्रास आपने जनरली ग्रास देखी होगी, आई एम शोइंग द पिक्चर इन माय नेक्स्ट वीडियो, पार्थेनियम क्रॉप का। तो पार्थेनियम क्रॉप ग्रासेस के जो पार्थेनियम है या कैरेट ग्रास के पॉलन ग्रेन्स के द्वारा हमको बहुत सारे कंटेमिनेटेड डिसीजेस होती हैं। ओके, सो दिस इज द structure of a developing pollen grain. This is a single cell structure. It have two layer, first and second, then divided into the vacuole and nucleus is also, and that is the vegetative cell. It is large in the shape, and this is the germinative cells. Clear हो गया? So continue in the next topic, continue in the next video. Thank you.